Hello students. In the last lecture, we studied the law of gearing. We discussed different terminologies like pressure angle. We discussed pressure line. Then with the help of a figure, we saw exactly what a pressure angle is. And finally, we discussed some part of law of gearing. What was the statement? The law of gearing states that for constant angular velocity of two surfaces, the common normal at the point of contact must always pass through the pitch point. Right? So, be it any surface of any profile, we can only say that the profile should be such that it should maintain constant angular velocity, and this law has been satisfied by only two types of profiles, and those profiles are cycloidal teeth and involute teeth. That is cycloidal profile and involute profile. So we can only say that cycloidal profiles and involute profiles are the two profiles which satisfy the law of gearing. So let us repeat once again that the law of gearing states that for maintaining a constant angular velocity ratio of two surfaces, the common normal at the point of contact must always pass through the pitch point, and this law has been satisfied only by two profiles, and those profiles are cycloidal profile and involute profiles. Right? Now let us see exactly, since we are very much familiar with these curves, let us only revise both these curves, what exactly they are and what they mean. Okay, so what we said, that a cycloidal teeth or an involute teeth, that is teeth may be of cycloidal profile or it may be of an involute profile. Now when we talk of a cycloidal teeth profile, as shown in the figure, say this is your figure tooth. So one side, this is one side of the tooth profile, and this is another side of the tooth profile, and obviously we know that this is the top land. So when we are talking about one side of a tooth profile, we can say that one side of the tooth profile is obtained by an part of epicycloid and a part of hypocycloid. That is, we can say that the one side of a tooth profile is a sum of hypocycloid and epicycloid. So we know that in terms of cycloidal profiles, we have two types of cycloidal profile, that is epicycloid and hypocycloid. Now we can say that when we talk about cycloidal, we know that the cycloid is a curve which is generated by rolling of one circle over the surface of another. Right? When one circle rolls over the surface of another circle, then the path traced by a point will be termed as cycloid. Now when the circle rolls on the upper surface of the circle, in that case it will be termed as hypocycloid. So we can say that, epicycloid. We can say that if there is one circle and the circle, say this is there may be one circle on this another circle, और जब ये ऊपर वाला सर्कल किसी सर्कल के ऊपर रोल करता है ना, ये हम कह देंगे कि बेस सर्कल है, और हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को हम जो हमारा बेस सर्कल है उसके ऊपर से रोल करेंगे और एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो पॉइंट जो भी पाथ ट्रेस करेगा, है ना, इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह का पाथ ट्रेस करेगा. तो ये जो पाथ होगा, दैट पाथ विल बी टर्म्ड एज epicycloid. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सर्कल
दूसरे सर्कल के ऊपर रोल करता है और फिर जो हमें प्रोफाइल मिलता है उसे हम इपीसाइक्लॉइड कहेंगे। और अगर वही सर्कल हम इंटरनल किसी सर्कल के अंदर के हिस्से में रोल करेंगे, कुछ इस प्रकार का हमें एक कर्व मिलेगा, तो ये जो कर्व होगा उसे हम हाइपोसाइक्लॉइड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इपीसाइक्लॉइड मतलब कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अपर सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, और हाइपोसाइक्लॉइड मतलब कि एक सर्कल किसी सर्कल के अंदरूनी हिस्से के ऊपर रोल कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, अब जो हमारा इपीसाइक्लॉइड है, इपीसाइक्लॉइड का हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया। जो हमारा हाइपोसाइक्लॉइड है, हाइपोसाइक्लॉइड का हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया, और दोनों पोर्शन को हमने रहने दिया। ये बाकी का जो पोर्शन है ये हमने निकाल दिया ना, ये पोर्शन हमने निकाल दिया, तो हमारे पास इतना ही पोर्शन बचा। और ये जो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन है, दैट पोर्शन इज द टीथ प्रोफाइल, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इतना ही पोर्शन बचा है, और ये जो पोर्शन है ये हमारा टीथ का प्रोफाइल है, ये इतना, राइट ना, सॉरी ये इतना पोर्शन। तो दैट इज द टीथ प्रोफाइल। और प्रोफाइल कौन सा है? इपीसाइक्लॉइड का भी पार्ट है उसके अंदर, और हाइपोसाइक्लॉइड का भी पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि टूथ का एक तरफ का जो प्रोफाइल है वो इपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड का कॉम्बिनेशन है, राइट। अच्छा भाई, तो ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे तरफ की, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कोई इस तरह का एक प्रोफाइल रहा होगा और इस तरह का एक प्रोफाइल रहा होगा। दोनों का हमने थोड़ा पार्ट ले लिया और हमने फिर दूसरी तरफ का प्रोफाइल बना दिया, राइट। तो यहां से हमें मिल जाता है साइक्लॉइडल टीथ प्रोफाइल, राइट। सो ये एक टीथ प्रोफाइल है जो लॉ ऑफ गियरिंग को फुलफिल करता है, साइक्लॉइडल प्रोफाइल। अब बात करते हैं जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोफाइल है, जो लॉ ऑफ गियरिंग, जो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मेंटेन करने के लिए बिटवीन टू सरफेसेस को, जो हमारा लॉ ऑफ गियरिंग है उसे फुलफिल करता है, और वो होता है इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोफाइल हैं जो लॉ ऑफ गियरिंग को फुलफिल करता है। फर्स्ट वन क्या है? साइक्लॉइडल टीथ प्रोफाइल। और सेकंड टाइप ऑफ जो प्रोफाइल है वो है इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल। अच्छा भाई, अब इन्वोल्यूट के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इन्वोल्यूट हमने क्लास SC2 में, हमने सेकेंड ईयर में, हमारे सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मशीन ड्राइंग में ये जो कर्व है ये ड्रॉ किया है। तो हमें ये मालूम है कि इन्वोल्यूट एक ऐसा प्रोफाइल है कि अगर स्ट्रेट लाइन को किसी सर्कल के ऊपर मैं रोल करता हूँ विदाउट स्लिपिंग, तो उसे, वो जो कर्व एक जनरेट होगा उसे हम कहेंगे कि दैट इज एन इन्वोल्यूट, राइट। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का हम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को अगर मूव करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इस पोर्शन के यहाँ फोर्स लगा करके अगर हम नीचे की तरफ दाबते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ का ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ कुछ मूव होगा, राइट। तो मूव होते हुए मतलब कि ये पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार का, ये जो कर्व है कुछ ऐसा पाथ ट्रेस करेगा, राइट। तो ये जो पाथ ट्रेस्ड है, इस पाथ को हम कहेंगे दिस पाथ, दिस प्रोफाइल इज योर इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल, राइट। तो अब ध्यान दो, अब अगर मुझे एक इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल कुछ इस तरह से मिलता है, मैं इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल का ये इतना पार्ट ले लेता हूँ और टीथ का एक तरफ का पार्ट फॉर्म करता हूँ। बाद में मैं इसी स्ट्रेट लाइन को कुछ यहाँ से दूसरी तरफ से रोल करता हूँ, तो मुझे कुछ इस प्रकार का एक कर्व मिलेगा, इन्वोल्यूट प्रोफाइल। और उस इन्वोल्यूट प्रोफाइल का मैं इतना सा पोर्शन ले लेता हूँ और उसे दूसरी तरफ का, टीथ का दूसरी तरफ का प्रोफाइल कंसीडर कर लेता हूँ, और दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो हमें तो एक टीथ मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा टीथ है, दिस फॉर्म्स योर टीथ एंड दिस इज नथिंग बट योर इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल, राइट। सिमिलर आप यहाँ देख सकते हो ये ऐसे, और अगर मैं दूसरी तरफ से रोल करके ऐसा कुछ रोल करूँ तो
हमें ये ऐसा कुछ एक टीथ मिलेगा। तो जो ये टीथ मिलता है हमें, सिंस ये इन्वोल्यूट का प्रोफाइल है इसलिए हम उसे इन्वोल्यूट टीथ बोलते हैं। और जब हमें टीथ मिलता है गियर का टीथ साइक्लॉइडल टीथ प्रोफाइल का, तो हम उसे साइक्लॉइडल टीथ कहते हैं, राइट। तो वी कैन सम with a statement that the law of gearing states that for maintaining a constant angular velocity ratio, the common normal at the point of contact must always pass from the pitch point, and this condition is only satisfied by two profiles, that is cycloidal profile and an involute teeth profile. So we have also seen what exactly a cycloidal profile is and what an involute profile is. Now since हमने दोनों भी टीथ प्रोफाइल्स को देख लिया है, आइए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि एग्जैक्टली साइक्लोइडल टीथ प्रोफाइल क्या है, इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल क्या है और उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, राइट। सो लेट अस कंपेयर बोथ दीज टीथ प्रोफाइल्स। Okay, we were comparing these teeth profiles, cycloidal and involute teeth profile. When we talk about the cycloidal teeth profile, the pressure angle in a cycloidal teeth profile varies. जो साइक्लोइडल टीथ प्रोफाइल होता है उसके अंदर जो प्रेशर एंगल होता है वो बदलते रहता है। अब ये जो प्रेशर एंगल है वो साइक्लोइडल टीथ प्रोफाइल में जहां पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट होगा वहां मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो कम कम होता चला जाएगा, पिच पॉइंट पे 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर से बढ़ते बढ़ते जाएगा और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट के ऊपर फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। हमने पीछे एक फिगर देखी थी पिछले लेक्चर में, ये वाला, राइट। यहाँ हमने कहा था कि जहाँ हमारा अडेंडम सर्कल प्रेशर लाइन को कट करेगा, ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है, और जहाँ दूसरे सर्कल का अडेंडम सर्कल अगेन प्रेशर लाइन को कट करेगा कहीं यहाँ, यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट है, राइट। तो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर एंगल है वो मैक्सिमम होगा। किस केस में? अगर टीथ प्रोफाइल हमारा साइक्लोइडल है तो, राइट। जैसे ही वो पिच पॉइंट पे आता है, अब पिच पॉइंट हमें मालूम है कि इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इट इज द पॉइंट वेयर द पिच सर्कल्स ऑफ बोथ मीटिंग गियर्स मीट, राइट। मतलब कि यहाँ मीट हो रहे हैं, ये अभी हमारा पिच सर्कल है, ये भी हमारा पिच सर्कल है, दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं। तो जैसे ही प्रेशर एंगल पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम था, राइट, प्रेशर एंगल इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम था, आगे बढ़ा, कम होता गया, कम होता गया, पिच पॉइंट के ऊपर पहुंचा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तब वहां प्रेशर एंगल 0 हो गया, और जैसे ही 0 हुआ उसके बाद जैसे ही आगे पॉइंट बढ़ा तब प्रेशर एंगल फिर इंक्रीज होना चालू हुआ और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट के ऊपर वो फिर मैक्सिमम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ साइक्लोइडल गियर्स द प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ engagement, becomes a 0 at the pitch point and is again maximum at the point of disengagement. Okay, in case of involute teeth profiles, इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल में प्रेशर एंगल वैरी नहीं होता है। इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल में प्रेशर एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। तो साइक्लोइडल में, साइक्लोइडल टीथ प्रोफाइल में प्रेशर एंगल वैरी होता है, और कैसे वैरी होता है? मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, 0 एट पिच पॉइंट एंड अगेन मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट। और प्रेशर एंगल इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल में वैरी नहीं होता है। जितना प्रेशर एंगल एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट होगा उतना ही प्रेशर एंगल एट द पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट होगा, उतना ही वो पिच पॉइंट पर भी होता है। अच्छा भाई, सेकंड कंपैरिजन का पॉइंट है रिगार्डिंग इंटरफेरेंस। इन केस ऑफ साइक्लोइडल टीथ प्रोफाइल्स इंटरफेरेंस होता ही नहीं है और इन्वोल्यूट में इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस एक नया फिनोमेना है जिसे हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इंटरफेरेंस मतलब कि एक ऐसी केस जिसमें एक टीथ का प्रोफाइल दूसरे टीथ के प्रोफाइल में इंटरफियर करता हो,
उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमने अडेंडम लेंथ को अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया है, इन दैट केस जो दो मेटिंग गियर्स होंगे उनमें से अडेंडम सर्कल, वन ऑफ द गियर का अडेंडम सर्कल मेटिंग गियर के बेस सर्कल के अंदर घुसता है, पेनिट्रेट हो जाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि द प्रोफाइल ऑफ वन ऑफ द गियर इंटरफेयर्स इन द प्रोफाइल ऑफ द मेटिंग गियर एंड दिस फेनोमेना इज नथिंग बट इंटरफेरेंस। राइट, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, आगे चल के हम अगले लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली इंटरफेरेंस होता क्या है, आकर कैसा होता है, क्यों होता है, और उसे इलिमिनेट करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स क्या है। राइट, तो फिलहाल के लिए इंटरफेरेंस, और हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस साइक्लोइडल गियर में होता ही नहीं है, वेरएस इंटरफेरेंस ये इन्वॉल्वड गियर में होता है। इंटरफेरेंस इज अ फेनोमेना विच इज ऑलवेज अवॉइडेड। ये हम मानते हैं कि हमारे गियर टीथ प्रोफाइल के लिए डिसएडवांटेजियस है, हार्मफुल है, तो हम हमेशा जो इंटरफेरेंस का फेनोमेना है उसे इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो साइक्लोइडल गियर में इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, वेरएस इन केस ऑफ involute teeth profile interference occurs. Let us move to the third point regarding difficulty of manufacturing. अब ध्यान दो, हमने कहा कि साइक्लोइडल टीथ प्रोफाइल के जो एक तरफ का प्रोफाइल है वो दो कर्व्स को मिला करके बनाया जाता है, इपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड। तो ऑब्वियसली अगर दो प्रोफाइल्स को बना करके एक प्रोफाइल बन रहा है, एक तरफ का टीथ का प्रोफाइल बन रहा है, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग कर्व प्रोफाइल जनरेट करने के लिए मुझे दो अलग अलग सेटअप लगेगा, दो अलग अलग कटिंग टूल्स का सेटअप विथ मोशन लगेगा। राइट, तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोइडल के अंदर साइक्लोइडल टीथ मैन्युफैक्चर करते वक्त अगर हमें दो तरह के कटिंग टूल्स यूटिलाइज करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइक्लोइडल गियर इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। राइट, तो हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि साइक्लोइडल गियर्स आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर सिंस इट इन्वॉल्व्स टू प्रोफाइल्स, दैट इज इपीसाइक्लॉइड्स एंड हाइपोसाइक्लॉइड्स। राइट, अच्छा भाई, अब कंपैरेटिवली जो इन्वॉल्यूट टीथ गियर होता है उसका एक तरफ का प्रोफाइल सिर्फ एक ही प्रोफाइल होता है, दैट इज प्योरली इन्वॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ही तरफ का प्रोफाइल एक ही कटिंग टूल से बन सकता है, तो इसका मतलब कंपैरेटिवली इन्वॉल्यूट गियर मैन्युफैक्चरिंग में साइक्लोइडल गियर से इजी है। राइट, सो इन्वॉल्यूट गियर्स आर इजीली मैन्युफैक्चर्ड ड्यू टू ओनली वन प्रोफाइल। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि द फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग सेंटर डिस्टेंस। अगर अब हमें ये तो मालूम है कि हम दोनों गियर्स को पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, और पावर ट्रांसमिशन के लिए हम दोनों गियर्स को शाफ्ट के ऊपर माउंट करेंगे। राइट, अब ये शाफ्ट अगर दो पैरेलल शाफ्ट्स हैं तो शाफ्ट के बीच का कुछ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। अगर गियर्स ये साइक्लोइडल हैं और हम शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस अगर वैरी करते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो में चेंज होगा। किसमें? अगर गियर साइक्लोइडल है तो। राइट, center distance of the two shafts can be varied. If varied, the velocity ratio also varies, है ना। या फिर इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम पावर ट्रांसमिशन के लिए साइक्लोइडल गियर्स यूज़ कर रहे हैं, हमने दो शाफ्ट के ऊपर साइक्लोइडल गियर्स लगा दिए हैं, लेकिन ड्यू टू रेगुलर यूज देयर इज सम नॉमिनल चेंज इन द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट। एट दैट टाइम अगर शाफ्ट के बीच अंदर थोड़ा भी सेंटर डिस्टेंस चेंज होता है तो वेलोसिटी रेशियो वैरी कर जाएगा। किस केस में? अगर साइक्लोइडल गियर है तो। वेरास वहीं पर अगर गियर्स ये इन्वॉल्यूट गियर्स हैं तो अगर थोड़ा बहुत सेंटर डिस्टेंस वैरी होता है तो भी वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होता है। राइट, तो एक्चुअली हम गियर्स तो वहीं यूज़ करेंगे जहां हमें वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्यूट गियर्स में अगर सेंटर डिस्टेंस बाय चांस किसी वजह से हमारा सेंटर डिस्टेंस चेंज होता है
तो भी अगर गियर्स ये इन्वोल्यूट तरह के हैं तो से वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगी। वेरस अगर साइक्लॉइडल हैं तो अगर सेंटर डिस्टेंस थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वेलोसिटी रेशियो भी चेंज होगी। सो this is the brief comparison between cycloidal and involute teeth profiles. So dear students, we will stop here and we'll continue with the lectures in the coming parts. Okay, thank you.